کہ ہمارے پاس اینڈرائڈ فون ہے اور اس میں ہم نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے. ترقی کے لیے خدا کا شکر ہو، لیکن یاد رکھیے آپ کا فون اینڈرائڈ ہو سکتا ہے، آئی فون ہو سکتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کیا کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی مقدس فون نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کتاب مقدس کتاب ہے. میں آج رات آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ ہارڈ کاپی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اٹھانا زحمت نہیں رحمت سمجھا کیجیے. اور جب آپ عبادات میں آتے ہیں اپنی بائبل مقدس ضرور ساتھ لائیے. آئیے خدا کے کلام کی طرف پڑھتے ہیں. آج رات کی عبادت کے لیے جو ٹاپک مجھے دیا گیا، روغن بلسان. میں شکر گزار ہوں کمیٹی کا کہ انہوں نے اس اہم سچائی پر خدا کے کلام کی خدمت کے لیے مجھے موقع دیا. میرے ساتھ دیکھیے، 2 حوالہ جات میسج کے آغاز میں ہم دیکھیں گے. یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب، اس کی 4تھی آیت سے 7ویں آیت کے آخر تک، اور پھر دوسرا ورد یرمیہ نبی کا صحیفہ 8واں باب 18ویں آیت سے 9ویں باب کی 4تھی آیت تک ہوگا. میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ خدا اپنے پاک روح کی قدرت سے وہ پیشن، وہ پین جو یرمیہ نبی اپنی قوم کے لیے رکھتا تھا، مجھے اس کو کلیسیا تک، ایمانداروں تک ٹرانسفر کرنے کا فضل بخش دے. یرمیہ نبی کا صحیفہ 8واں باب 4تھی آیت سے، اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلیم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں. میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں. کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا. ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے. جس طرح گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے، ہاں ہوائی لک لک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، اور کمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے. 8واں باب 18ویں آیت سے، کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا. دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے. کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ
اس میں نہیں. انہوں نے کیوں تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی. اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا. میں کڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا. کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا. کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا. کیونکہ وہ سب بدکار اور دغا باز جماعت ہیں. وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں. وہ ملک میں زور آور ہو گئے ہیں لیکن راستی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے. خداوند فرماتا ہے، ہر ایک اپنے ہمسایہ سے ہوشیار رہے اور تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ہر ایک بھائی دغا بازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا اور ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا. خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. یرمیہ نبی کے صحیفے کا شمار عبرانی بائبل کے انبیاء اکبر یا میجر پروفٹس میں ہوتا ہے. یرمیہ نبی کے صحیفے کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا اگرچہ قدرے مشکل ہے، مگر اس کا مطالعہ بے حد مفید ہے اور ایمان افروز بھی. اس کو سمجھنے کے لیے اسے پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو محسوس کرنے کی، فیل کرنے کی ضرورت ہے. اس صحیفہ کے شروع سے آخر تک جذبات، ایموشنز کا ایک سیلاب یا دھارے بہتے ہیں جن سے اس کے پیغام کی گہرائی اور تاثیر میں اضافہ ہو گیا ہے. اس صحیفے کو سمجھنے کے لیے بیدار ذہن کے ساتھ کھلے دل کی ضرورت بھی ہے. اس کی تفہیم یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے قاری یا پڑھنے والے کا روحانی تجربہ، اسپرچول ایکسپیرینس جس قدر گہرا ہوگا، وہ نبی کے خیالات کو، اس کی وسعت کو سمجھنے میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا. صحائف الانبیاء کے علماء، اسکالرز، ان کی متفقہ سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ یرمیہ یہودا کا عظیم ترین نبی ہے اور پرانے عہد نامے کے بہادر ترین اشخاص میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایسے تاریخ دور میں جب نہ صرف نیشن
بلکہ کریم آف دی نیشن اور لیڈرشپ وہ بت پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. خدا کے پیغام کو سنانے کے لیے بے مثال جرت دلیری کی ضرورت تھی. اس کے لیے خدا نے ایلیا جیسے جوشیلے سخت مزاج اور غصہ وار شخص کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا، ایک ایسے شخص کو چنا جو سافٹ ہارٹڈ، نرم دل، نرم مزاج، کائنڈ ہارٹڈ، سینسیٹیو، حساس، پیشنیٹ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا. وہ اپنے پیش رو ہوسیہ نبی اور بعد میں آنے والے خداوند یسوع مسیح کی طرح مرد غمناک اور شکستہ دل انسان تھا. اس لیے اسے پرانے عہد نامے میں مسیح کا مسیل کہا جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا مقدس متی کے مطابق انجیلی بیان کے 16ویں باب میں جب کیسریا فلپی کے علاقے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ لوگ ابن آدم تو کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہودی سوچ کے اندر یرمیا نبی کو مسیح یا مسیح کا مسیح سمجھا جاتا تھا. اس کی نبوتی خدمت وہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور چیلنجنگ بھی ہے. اور اس کا چیلنجنگ پہلو یہ ہے کہ خدا کا پیغام صرف اس کے وسیلے پہنچا نہیں. He was not just a medium to convey the word of God. وہ صرف ایک وسیلہ نہ بنا خدا کے کلام کو سنانے کا، بلکہ پیغام اس کی شخصیت اور کردار کا حصہ بن گیا. یرمیا نبی کے پیغام اور شخصیت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایک معجزے سے کم نہیں کہ یرمیا نبی کا کردار اس کا پیغام بن گیا. اس کا اٹھنا بیٹھنا کیریکٹر وہ پیغام دیتا تھا، وہ پیغام جو خدا نے اس کو دینے کے لیے بلایا اور چنا تھا. یرمیا کے معنی ہے یہوہ ایگزالٹس، یا اس کے معنی ہے یہوہ اسٹیبلش. یہوہ سرفراز کرتا ہے، سر بلند کرتا ہے، یہوہ قائم کرتا ہے. اور اس کے یہ بھی معنی ہے کہ یہوہ پھینکتا ہے. یرمیا نبی کا صحیفہ اس نبی کی بابت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ خلقیہ کاہن کا بیٹا جو بنیامین کی مملکت میں انتوتی کاہنوں میں سے تھا. خدا نے اسے شاہ یہودا یوسیہ کی سلطنت کے 13ویں برس میں نبوتی خدمت کے لیے بلایا. اس کی عمر اس وقت تقریباً 20 برس تھی. یسایا نبی کے قریباً 1 صدی بعد خدا نے یرمیا کو یہودا کی سلطنت میں نبی ہونے کے لیے بلایا. ہماری فہرست مسلمہ میں یا بائبل مقدس میں کتابوں کی ترتیب میں کتابیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ رونما ہوتا رہا. لیکن جب ہم تاریخ کے جھروکوں میں سے جھانکتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسایہ کے تقریباً 100 سال بعد خدا نے
यर्मिया को नबी होने के लिए बुलाया। यर्मिया नबी को अक्सर वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी, मातम कना नबी, गरिया कना नबी, शिकस्ता कल्ब नबी और प्रॉफिट ऑफ लोनलीनेस या तन्हाई का नबी कहा है, क्योंकि खुदा ने उसे शादी करने से मना कर दिया। इसको रिलक्टेंट प्रॉफिट भी कहा जाता है। मुजाहम या नाराज नबी 40 बरस तक सल्तनत यहूदा में यर्मिया नबी की नबूवती आवाज गूंजती रही और वो खुदा का पैगाम कठिन, तारीख, मुश्किल, थ्रेटनिंग हालात के अंदर बड़ी वफादारी से सुनाता रहा और यहूदा की बरगश्तगी के खिलाफ खुदा की अदालत का बयान करता रहा। यर्मिया नबी का सहीफा ये नबी के अंदर की कश्मकश, इनर स्ट्रगल्स जो नबी के अंदर चल रही थी, कौम के मजहबी अहवाल के ताल्लुक से, उनके खुदा के साथ एक कमजोर ताल्लुक की वजह से इसका बातनी गम जो है वो इस सहीफे में से मिलता है। और इस गम या मातम या शिकस्तगी की वजह उसकी कोई अपनी शख्सी जरूरत नहीं थी कि उसके लिए वो बड़ा परेशान था और वो गम करता था और मातम करता था, और ना ही किसी जाती वजह के सबब से वो दिल शिकस्ता था, बल्कि अपनी कौम और कौम के गुनाहों के नतीजे में कौम पर आने वाली तबाही के सबब यर्मिया का दिल टूट चुका था, वो शिकस्ता दिल हो चुका था। गुनहगार वो सिर्फ एक हद तक देखता है, लेकिन नबी की नजर जो नबूवती नजर है वो उस वक्त पर भी थी जब ये लोग असीर होकर चले जाएंगे, आंकड़े डालकर इनको ले जाया जाएगा, ये गैर मुल्क में चले जाएंगे। वो सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं था कि मैंने पैगाम दे दिया है, मैंने फर्ज पूरा कर दिया है, वो दुखा हुआ था। और मैं आज रात यर्मिया के किरदार से लीडर्स को, खादिमों को, चर्च कमेटी के लोगों को, मुनादों को, मुबशरों को, शिफा देने वालों को चैलेंज करना चाहता हूं। क्या मेरे पास इस तरह का दिल है कि मैं जब गुनाहगारों को गुनाह करता हुआ देखता हूं या मैं मौजूदा दुनिया को गुनाह के समुंदर में गरकाब होते हुए देखता हूं तो मैं सिर्फ ये कहता हूं, खुदावंद इनको बर्बाद कर दे, इनको तबाह कर दे, या मेरा दिल टूट जाता है और गम से भर जाता है और मैं यर्मिया नबी की तरह क्या ये कहने की जिसारत कर सकता हूं कि मैं अपनी शख्सियत को आंसुओं में बहा देना चाहता हूं। नबी अपने बातिन के गम, इनर ग्लूम का इजहार यूं करता है, गौर से सुनिए। काश के मैं गम से तसल्ली पाता। हम ये कहकर सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने आप को, तेनू किसी नाल की तू अपनी निभाई जा। ये एक आदमी के लिए, आम आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं जो नए अहद का काहिन होने का दावेदार हूं, मैं जो खादिम होने का दावेदार हूं, मैं जो मसीह की जगह उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि गुनाहगार दुनिया के सबब से मेरा दिल, मेरी रूह पिघल चुके हैं, गम मेरे अंदर है और काश के मैं गम से तसल्ली पाता। मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। अपनी कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्त हाल हुआ। एक सच
सच्चे लीडर की पहचान ये नहीं होती कि वो सिर्फ गाइड करके लीड करके बैठ जाए। उसकी पहचान ये है कि वो अपनी भेड़ों की फिक्र करे। कोई रीछ, कोई शेर, कोई जंगली दरिंदा मेरे गला को बर्बाद तो नहीं कर रहा। हमारी रात की नींदें उड़ जानी चाहिए और हमारे अंदर जो मॉडर्निज्म का खुमार है वो निकल जाना चाहिए। गले को शैतान बर्बाद कर रहा है। कलीसियाएं तनज़ली का शिकार हो रही हैं। ईमानदार दिन ब दिन जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं और हम ख्वाबे खरगोश के अंदर पड़े हुए हैं कि शायद मैं दुरुस्त समत में जा रहा। इस दौर के लीडर्स को यिर्मयाह नबी के सहीफे और उसके किरदार का मुताला करने की जरूरत है। वो कहता है मैं उड़ता रहता हूं, हैरत ने मुझे दबा लिया, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिन्नते कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। मुझे मसीह की इंजील का खादिम होते हुए मुख्तलिफ शहरों में बस्तियों में जाने का मौका मिलता है और वो गम मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता जब मैं मसीही नौजवान लड़कों को नशे के टीके लेकर फिरते हुए देखता हूं और वो गलियों और चौक भरे हुए हैं नशा आवर लोगों से और कलीसिया एसी गाड़ी में बैठकर मजे कर रही है। कोई दर्द नहीं, कोई इसके लिए प्लानिंग नहीं हमारे पास। कौन है जो आज ये ऐलान करे कि इन मकतूलों के लिए जिनको शैतान और नशा गुनाह के अंदर ले जा रहा है, शैतान हमारी स्ट्रेंथ को तोड़ रहा है, हमारी नेशन की स्ट्रेंथ जा रही है और हमारे पास वक्त नहीं है उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए, इंजील सुनाने के लिए। मुझे तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई बड़ा चर्च चाहिए जहां मैं इंजील सुनाऊं। लेकिन तेरा यीशु तो गलियों में फिरता था और वो तो बदरू गिरफ्तार इलाकों के अंदर चला जाता था और उसकी बादशाही का मिशन स्टेटमेंट ये है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। आज रात खुदा ने मुझे गुजरांवाला से लाहौर की कलीसियाओं को जगाने के लिए भेजा है। नकब लगाने वाला धाड़ता फिरता है, वो बर्बाद कर रहा है। क्या आज कोई यिर्मयाह की तरह का खादिम जो ये कहे आओ घुटनों के बल हो जाएं, आओ खाक पर बैठ जाएं, आओ आंसू बहाएं, आओ तौबा करें, आओ दुआया इबादत करें ताकि ये लोग बच जाएं। मुझे माफ कीजिए जब मैं ये कहता हूं कि आज हमारी दुआया इबादत वो एंटरटेनमेंट मीटिंग्स होती है। दुआ के बाद मिलेगा क्या, खाना क्या है, लेकिन कि दुआ क्या करनी है इसका किसी को पता नहीं। हमें वापस आना होगा। यिर्मयाह नबी का किरदार मेरे लिए, आपके लिए चैलेंज है, लीडर्स के लिए चैलेंज है, शिफाएं बांटने वालों के लिए चैलेंज है, इंस्पिरेशन है। मुकाम सद अफसोस ये है कि आज मिनिस्ट्री रिलेटेड हमारे पास बहुत कुछ है, कॉन्टैक्ट्स हैं, गोरे हैं, काले हैं, बगे हैं, नीले हैं, पीले हैं। मिनिस्ट्री प्रैक्टिस हमें ज्यादा आ गए। हमारे पास बेहतर है लेकिन पैशन नहीं है, पैशनेट हार्ट नहीं है, वीपिंग आइज नहीं है, इनका फुकदान है। हम मॉडर्न हो चुके हैं। ओ रोने से हमारी नजर खराब हो जाएगी, रोने से मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी खराब हो जाएगी, मेरा मेकअप, मेरा मेकओवर खराब हो जाएगा, ड्रेसिंग मांग पड़ जाएगी।
दसो मैं हूं एडा तैयार होकर होंदा फिर। काश हम तैयार होने की बजाय रोने को तरजीह दे देते, ताकि जहन्नुम न भरती आसमान की बादशाही में लोगों का इजाफा। हम तो दलेराना गुनाह के खिलाफ मुनादी नहीं करते कि लोग नाराज हो जाएंगे। मर मर के 10 जी इकट्ठे कीते ने जी, और ऐसे मुनादों को नहीं बुलाया जाता जो गुनाह के खिलाफ मुनादी करते हैं। सांप को जितने मर्जी मॉडर्न नाम दे दिए जाए, उसकी नेचर नहीं बदल सकती। गुनाह को आप कितना भी मॉडर्न रैप कर लें, उसकी नेचर नहीं बदलती। और बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी मौत। हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़े, हमें इसके खिलाफ जहाद करना पड़े, हमें इसके खिलाफ सरमन्स देने होंगे, तालीमात देनी होंगी, ताकि लोग वापस आ जाएं। जब पूरी कौम रूहानी इर्तदाद, बैकस्लाइडिंग, बेरारवी, बुत परस्ती और इखलाकी गुनाहों में गिर चुकी थी, यिर्मयाह नबी का पैगाम खुदा के दिल का इजहार है। इन हालात में नबी की दर्द भरी पुकार, करा दुहाई, इस्तफसार, सवाल, पुकार, शिकवा सुनाई देता है। फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। ये होपलेसनेस का इजहार है। शायद फसल कटे हमारे हालात बेहतर हो जाए, गर्मी खत्म हो हमारे हालात बेहतर हो जाएं। गुनाह की बीमारी का इलाज न गर्मी कम होने से होता है, न गर्मी ज्यादा होने से होता है, न फसल कटने से होता है। इसका इलाज कैलवरी की सलीब पर एक ही शख्स ने किया, और वो मेरा और आपका खुदाबंद यीशु मसीह है। नबी रो रहा है, his heart is bursting with pain। गर्मी के अयाम तमाम हुए, फसल काटने का वक्त गुजरा और हमने रिहाई नहीं पाई। 8वां बाब 22वीं आयत, जहां से हमने टॉपिक लिया, ये जुमला इस्तफहामिया है, ये एक प्रोवर्ब भी है। क्या जिलाद में रोगने बिलसान नहीं? सवाल है, क्या जिलाद में रोगने बलसान नहीं? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? ये जुमले, ये प्रोवर्ब्स रिफ्लेक्ट करते हैं होपलेसनेस। क्या जिलाद में रोगने बलसान नहीं? क्या वहां कोई तबीब नहीं? इन हालात के सबब नबी बुरी तरह हार्ट था, और यहां पर हार्ट के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है शैबर, इसका मतलब है टू ब्रेक, टू शैटर, तोड़ देना, पाश पाश करना, परखचे उड़ना, बर्बाद करना, रेजा रेजा करना, तबाह करना। इस गम ने क्यों बिन्नते कौम शिफा नहीं पाती? नबी की शख्सियत को सिर्फ तोड़ा नहीं बल्कि परखचे उड़ा दिए हैं, रेजा रेजा कर दिया है, किरचियां करके रख दी हैं। और अब वो कह रहा है कि क्या जिलाद में रोगने बिलसान नहीं? अहद जदीद का माहिर इलाहियात बुजुर्ग
पौलुस रसूल इस कैफियत को लेबर पेन्स के साथ मुमासल ठहराता है। वो कहता है मुझे फिर से जनने के दर्द लगे हैं। आई हैव लेबर पेन्स। जब भी ये दर्द है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है। हमारा प्रॉब्लम यह है साढ़े हो दर्द ही नहीं हट देते कितों लगन सन। इनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, इनकी समझ ही नहीं, और दर्द ही सांस नहीं लेने देते। इस दर्द को, लेबर पेन को लफ्जों में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी दुआ है खुदा ये मौजज़ा करे कि कलीसिया पाकिस्तान की क़यादत में ये दर्द फिर से लग जाए, ताकि कलीसियों में नए बच्चे पैदा हों, नवमौलूद ईमानदार नई पैदाइश के तजर्बे के साथ दाखिल हों। नबी की रूह अपनी बिन्नत कौम की शिकस्तगी के सबब सख्त दर्द कर्ब में मुब्तला है। और सवाल यह है, क्या जिलाद में रोगने बलसान नहीं? ये जिलाद एक बड़ी खास जगह इसराइल, इसके मानी है शहादत का ढेर। इसकी जुग्राफियाई हदूद ये है, शुमाल में गलील की झील का जनूबी साहिल, जनूब में बहीरा मुर्दार का शुमाली साहिल, मगरब में दरियाए यर्दन और मशरक में बियाबान। आपको याद होगा कि जब मुकद्दस याकूब अपने बच्चे और अपनी भेड़ें लेकर अपने ससुर के हाथ से भागा और उसने उसका पीछा किया, तो एक जगह पर जहां पर ये इकट्ठे हुए थे वहां इन्होंने एक अहद बांधा था और फिर इस जगह का नाम जिलाद रखा, जिसके मानी है शहादत का ढेर। पहले इस जगह का नाम जिला, इसका मतलब है पथरेली जमीन। याकूब ने इसके आराब बदल कर इसे जालीत पुकारा या जलआत पुकारा। इसके मानी है शहादत का ढेर। कैथोलिक तर्जमा में यह लफ्ज मुस्तामिल है, हमारी प्रोटेस्टेंट बाइबल में जिलात ही है। लाबन ने अरामी या कुल्दी जुबान में इसे यजर शहदू कहा था, जिसका मतलब है शहादत का अंबार। बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स कहते हैं कि जिलात की पहाड़ियों पर बिलसान के दरख्त पाए जाते थे और रोगने बिलसान हासिल करने के लिए बिलसान के दरख्तों को नेजा या किसी नोकदार हैवी चीज के साथ दागा जाता था, जख्मी किया जाता था और इसके नतीजे में उसमें से रोगन निकलता था। अहदे कदीम के उतबा और हुक्मा महरीन निबातात इसकी मुअस्सर ताकत को तस्लीम करते हैं। मशहूर कैसर टाइटस और पोम्पे इस रोगन को लेकर रोम गए। रवायत है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम के मोहलक जख्म को ठीक करने के लिए रोगने बलसान इस्तेमाल किया गया। बाइबल मुकद्दस में इसका पहली दफा जिक्र पैदाइश की किताब के 37वें बाब की 25वीं आयत में आता है, जब मुकद्दस यूसुफ के भाई उसे मार देना चाहते थे और फिर अस्मैलियों के काफले के हाथ बेचा गया। और ये जिन बातों की तजारत करते थे, जिन चीजों की, इनमें रोगने बिलसान भी शामिल था। खुदा का पैगाम दुख्तर मिस्र के लिए यिर्मयाह नबी का सहीफा 46वां बाब 11वीं आयत, ऐ कुंभारी दुख्तर मिस्र जिलाद को चढ़ जा और बिलसान ले, तू बेफायदा तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करती है, तू शिफा ना पाएगी। शिफा का सोर्स, शिफा का मंबा, जिलाद को चढ़ जा और रोग ने बिलसान ले।
नए अहदनामे में जिलाद के पहाड़ों की बजाय कोहे कलवरी और रोगने बलसान की जगह खुदा के पाक और बेबर्रे यीशु का लहू और रोगने बिलसान, तो बिलसान को नेजा मारने के बाद थोड़ी देर बाद मौकूफ हो जाता था, लेकिन ये लहू का दरिया आज भी जारी है और आज रात ये लहू का दरिया यहां बह रहा है। अगर गुनाह के मोहलक जख्म है, नासूर है, तो खुदा का बेटा इस जगह पर मौजूद है शिफा देने के लिए। रोगने बिलसान बेशकीमत था, मसीह का खून भी बेशकीमत है। मुकद्दस पत्रस अपने पहले आम खत के पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयात में लिखते हैं, तुम्हारी खुलासी फानी चीजों यानी सोने और चांदी से नहीं बल्कि एक पाक और बेऐब बर्रे यीशु मसीह के बेशकीमत खून से। हमें ये इसलिए बेशकीमत नहीं लगता कि हमें मिल मुफ्त जाता है। अगर आप इसकी कोई कीमत पूछना चाहते हैं तो उससे पूछें जिसके सर पर कांटों का ताज पहना है, जिसकी पुष्ट पर रोमी जलाद ने लातादाद घोड़ों की बारिश की, जिसके हाथों और पांव में कील झोंके गए, जिसकी पसली को नेज़े से दागा गया, और वो जो इस लहू की पहचान पा लेते हैं और वो जो इस लहू का तजर्बा कर लेते हैं, वो जो इस लहू के दरिया में खड़े हो जाते हैं, वो जानते हैं कि नामान को तो कहा गया था यरदन में 7 गोते मार, लेकिन यीशु के लहू का एक कतरा ही गुनाह के कोड़ को हमेशा के लिए पार कर देता है। ये बेशकीमत है, प्रीशियस है। रोगने बिलसान आसानी से दस्तयाब था, यीशु का लहू भी दस्तयाब है। रोगने बिलसान का असर यकीनी था, यीशु के लहू का असर भी यकीनी है, और ये अक्सीर आजम है। मैं बहुत छोटा था जब मैंने खौफ के खिलाफ अपनी मां से एक फार्मूला लिया कि जब भी खौफ है, मैं आज भी ये कहता हूं यीशु तेरे खून में फटा है। सेकंड्स में खौफ चला जाता है, तारीकी चली जाती है, इन्फ्लुएंस जो तारीकी की कुव्वतों का है वो चला जाता है। जहां मज़ाहब की तदबीरें गुनाह के खिलाफ बेअसर हो जाती है, लेलों और बछड़ों के लहू से ना धुलने वाले गुनाह, मौत की परछाइयां, गुनाह के हौलनाक नताइज का असर, जहां मेडिसिन डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, वहां पर खुदा के बर्रे यीशु मसीह का लहू कुदरत और कसरत के साथ काम करता है। मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा नहीं गा सकता, मैं वॉशरूम सिंगर हूं, लेकिन मैं गाता हूं अपनी तसल्ली के लिए। शायद आपने सुना हो, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। उसमें एक शेर है, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर दे। और ये मेरी शख्सी गवाही और तजर्बा है। ये लहू हर रोज मुझे ताकत देता है, ये लहू हर रोज मुझे पाक करता है, ये लहू हर रोज मुझे बाप के तख्त के लायक बनाता है। और मैं अपनी रूह में ये महसूस कर रहा हूं, मेरा ईमान है, महसूस नहीं, ईमान है कि उस लहू की नदी आज रात निजातपुरा के इस जमात के अंदर बह रही है। अगर गुनाह के होलनाक
जख्म आपके अंदर हैं। बीमारियों ने, बदरूहों ने, जादूगरियों ने, तारीकियों ने आपके घर को घेर लिया है, आपकी शख्सियत को घेर लिया है। मौत आपकी खिड़कियों पर चढ़ाई है और आपके कसरों में घुस बैठी है। तो एक फार्मूला है, वो लेते जाओ, वो यीशु मसीह का लहू, नए अहद का रोगने बिलसाम, ये तुझे, न सिर्फ तुझे बल्कि तेरी रूह और तेरे खानदान को भी निजात दे देगा। दवाई पड़ी रहे तो एक्सपायर हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, पोटेंसीज जाती रहती है। ये 2000 साल से ज्यादा अरसा हुआ ये लहू बहा था, ये आज भी कुदरत वाला है, ये आज भी ताकत वाला है। बिन्नते कौम की शिफा के लिए सरबंद हुआ। मसीह के कफारे का मकसद सिर्फ हमारी जिस्मानी बीमारियों से शिफा नहीं। आज कलीसिया पाकिस्तान में जितनी जिस्मानी शिफाओं के ढंढोरे पीटे जा रहे हैं, हर दूसरा आदमी हीलर है, अगर हीलर नहीं तो किसी हीलर का डीलर जरूर है, और यही कारोबार कलीसियाओं के अंदर फरोग पा रहा है। लेकिन रुक जाओ, बहुत बीमारी करके हमने कलीसिया को बीमार ही कर दिया है। जिस बंदे के सामने आप रोज ही कहेंगे बीमार बीमार, तुसी बीमार धक्के ना मनाओगे, वो बीमारी होना है बेचारे। हम क्यों शिफा की बात नहीं करते, हम क्यों निजात की बात नहीं करते? मैं आज रात थोड़ी देर के लिए जिक्र करना चाहता हूं उन बीमारियों का जिनको हम बॉदर ही नहीं करते, और ये हैं रूहानी बीमारियां। बंदा चर्च बैठा हुआ है तो फिर स्टेशन पे गया, आवारगी, बेरा रवि, जहनी किरदारी रवैयों की बीमारियां, मसीह का मिजाज आज तक अंदर हम अडॉप्ट नहीं कर सके। मुकद्दस पतरस अपने पहले खत के दूसरे बाब की 24वीं और 25वीं आयत में कहता है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर, जरा मेरे साथ रहिए, वो आप कौन है? बोले, कौन है वो आप? यीशु मसीह। वो आप हमारे गुनाहों को, गुनाह किसके हैं? बदन किसका है? अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए। सिर्फ यही नहीं कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और मेरी शुगर नॉर्मल हो जाए और मेरा डेंगू जाता रहे और मेरा कोरोना जाता रहे, इससे भी खतरनाक मोहलक रूहानी बीमारियां, जिनके लिए मसीह सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से हमने शिफा। हमारा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम बाइबल को बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझते, हम अपने कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मैं आज की सुनाना है वो हवाले लब लेने, लेकिन बाइबल क्या कहती है? शिफा किन बातों से पाई? लिखा है, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, और मसीही होकर, कलीसिया के मेंबर होकर, रूह से मामूर होकर भी भटकने की बीमारी हमारी गई नहीं, हम उसी में मुब्तला हैं। तो क्या फायदा? कौन सी शिफा की गवाहियां देते फिरते हैं? मैं जिस्मानी शिफा के खिलाफ नहीं, लेकिन इससे भी जरूरी कुछ और है। और अगर मेरे रवैयों को शिफा नहीं मिली, मेरा बातिन शिफा नहीं पा गया, और मैं भटकने की बीमारी से छूट नहीं गया हूं, तो सलीब पर किया गया काम मेरे लिए क्या मानी रखता है? भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगहबान के पास वापस आ गए हैं।
जिस्मानी शिफा के शोज और फेस्टिवल्स, इन्होंने हमें सचमुच ज़हनी बीमार कर दिया। हम शिफा पाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से। मैंने कभी ये गवाही नहीं सुनी कि मेरे अंदर ये कमजोरी थी, मैं इस पर गालिब आ गया, मेरे अंदर ये गुनाह था, मैं इस पर गालिब आ गया हूं, नज़ला ठीक हो गया, खांसी ठीक हो गई। सिर्फ यही मार्केट में चल रहा है। बिन्नते कौम की बीमारियां जो यर्मिया नबी के दौर में थी, वो आज कलीसिया में मुंतकिल हो चुकी है। और मैं जिक्र करना चाहता हूं उन बीमारियों का नहायत इख्तिसार के साथ। बरगश्तगी, ईमान से फिर जाना, ईमान की पहचान ही कोई नहीं रही, ईमान की स्टेटमेंट का ही किसी को पता नहीं। सिर्फ यही है कि कोई इधर से आ गया उससे दुआ करानी है, कोई इधर से आ गया उससे करानी है। हमें शिफा के लिए ईमान से मुनहरफ भी होना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन बदन अगर ना भी शिफा पाए, जब यीशु आएगा, ये जलाली हालत में जी उठेगा तो ये शिफा याफ्ता होगा। लेकिन अगर मेरी रूह को निजात न मिली और मैं पहली क़यामत में शरीक ना हुआ, तो ये शिफाएं किधर उठा के ले जाओगे? बरगश्तगी, इर्तदाद, खुदा की वफादारी को भूल जाना, खुदा के जलाल में बेफायदा चीजों को शामिल करना, जुए के नीचे सब मिशन में रहने से इनकार, तरबियत पजीर ना होना, खुदा को पहचानने से इनकार, मजहबी क़यादत की रियाकारियां और दगाबाजियां, बेइंसाफी, झूठी जुबान, नाशुक्रगुजारी, ये सारी बातें बिन्नते कौम की बीमारियां थी। तभी तो नबी कहता है, क्या जिन्नात में रोकने बलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? आज ये नहीं कहा जा सकता, रोकने बिलसान मौजूद है। तबीबों का तबीब वो मौजूद है। फिर बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? सबब यह है कि हम गुनाह से तौबा नहीं करना चाहते। यीशु के खून को भी पता नहीं कोई बिंटो जी ने समझा हुआ है। अने वाह वलियो मलियो, अगर गुनाह से तौबा करने का इरादा ही ना हो, गुनाह छोड़ने का फजल ही ना मांगा हो, गुनाह की जिंदगी से मुंह ही ना मोड़ा हो, और रोगने बिलसान गाते फिरो, क्या फायदा? खुदा कहता है, क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते? क्या कोई बर्गश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? बच्चों को कंट्रोल करें, मैं एंड कर रहा हूं। क्यों हमेशा की बरगश्त? आज हम ये चाहते हैं कि खुदा अपने मेयार बदले, मैंने नहीं बदला। मैं जो कर रहा हूं, जिस जगह पर चल रहा हूं, इसी पर चलूंगा। यहोवा भी अपने मेयार नहीं बदलता। एक रास्ता है बहाली का, एक रास्ता है शिफा का, एक रास्ता है आसमान की बादशाही का, और वो रास्ता ये है, तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और आसमान पर से ताजगी के दिन लौट आए। मुझे वो लड़का याद आ रहा है जो अपने बाप के घर से चला गया था। बाप के घर से चले जाना ही एक आफत है। बाप के साए से निकल जाना ही एक मुसीबत है। चला गया, और फिर जो उसका हाल हुआ आपको पता है। सूअर चराता था, उनकी फलियां खाने की कोशिश करता था, नहीं मिलती थी। आज बहुत से मसीही भी फलियां खाते हैं,
मसीह के दर को छोड़ के, कैलवरी से बहने वाले चश्मे को छोड़ के सियाणों के पीछे जाते हैं। इन्हां जिन्हां दा बुद्धू ही कोई नहीं, इन्हां नूं सियाणे किन्ने कहा? दुनिया में एक ही सियाणा है और वो मेरा यीशु है, उससे बढ़कर कोई नहीं। कलाम फरमाता है एक दिन उसके जहन में आया, मेरे बाप के घर में कितने मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां मर रहा हूं। ना कोई कपड़ा चजदा, ना कोई टाकी चजदी, बुरे हाल, बांके दिहाड़े। बाप के घर से दूर होकर यही होगा, भाग ले जितना भागना है, अंजाम बर्बादी है। फैसला किया मैं अपने बाप के घर जाऊंगा। मुबारक है वो लम्हात जब कोई मुसरफ बाप के घर वापस जाने का फैसला कर ले। आसान नहीं था, अंदर उठ रहा होगा, बाप के घर से तो तू बड़ा बहुशौक बनकर निकला था, ब्रांड के शूज थे, सूट था, दोस्त थे, आज किस मुंह से जाएगा? पता नहीं बाप को भूल करेगा या नहीं करेगा। अंदर एक ताकत उसे कह रही थी, बाप तेरा इंतजार कर रहे हैं। और यही आज रात मैं आपको कहने आया, तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। वो तेरे हालात से खुश नहीं, वो तेरी कमजोरी और बीमारी और लानत से खुश नहीं। He is waiting for you। और वो आज रात निजातपुरा में उतरा हुआ है, उसका तख्त यहां पर लगा हुआ है। एक शख्स आ रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, पांव में जूती नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, स्मेल आ रही है। मैं अपने बाप के घर जाऊंगा, बड़ी हो गई है, आई विल गो बैक। हमें से कौन आज रात ये फैसला करेगा, मैं अपने बाप के घर जाऊंगा। गुनाह के चिथड़ों के ऊपर मजहब का लिबास पहनकर तसल्ली देते हो, ये खुदा की अदालत के सामने ठहर नहीं सकते। बड़ा हुसीन लम्हा था, बेटा तो आ ही रहा था, क्या बाप ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था? बोले जरा मेरे साथ रहे। नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाप ने देखा कमरे में बैठकर, कोई माइक्रोस्कोप तो नहीं थी ना लगी, वो तो उन राहों पर खड़ा था जहां से उसका बेटा चला गया। तेरा बाप आज रात निजातपुरे में खड़ा है, उसी जगह पर जहां पर तूने उसे छोड़ देने का फैसला किया। देखा दूर से, हालत तो मेरे बेटे की नहीं, लेकिन दिल कह रहा था ये तेरा लख्ते जिगर ही है। कलाम कहता है बाप दौड़ा, क्या लिखा है? फादर रैन अवे। मजहब कहता है नहा के आओ, खुशबू लगा के आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, पाक हो के आओ। आसमानी बाप कहता है जिस हाल में भी है आ जा, मेरे पास एक ब्यूटी पार्लर है कैलवरी का, वहां से तुझे धोकर शहजादा बना दूंगा। बाप दौड़ा, उसे गले लगाया और चूमा। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यीशु मसीह का इंसान बनकर बैतलहम की चरनी में आना इंसानियत के लिए भूसे से कम नहीं। और पैगाम यह है कि तेरे बाप ने तुझे गले लगा लिया है। ऐलान कर दिया गया, अच्छे से अच्छा जामा, जूता। गुलाम ना पूरे कपड़े पहन सकता था, ना जूती पहन सकता था। बेटा कपड़े भी पहनता है, जूती भी पहनता है, वो आ जाता है, यही काफी है। इसको अंगूठी पहनाई जाए। ये मर गया था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बिन्नते कौम की बीमारी का इलाज
तौबा है कि हम अपने गुनाह, अपनी तलछट, अपनी नापाकियों से बास आकर रोगने बिलसान के नीचे बैठ जाएं, कैलवरी के चश्मे के नीचे बैठकर दुआ करें, ए बाप आज रात मुझे धो दे। आपको रूहानी शिफा भी मिल जाएगी, जिस्मानी शिफा भी मिल जाएगी, मुआशियाती शिफा भी मिल जाएगी, सोशल हीलिंग भी मिल जाएगी। मेरी दुआ है खुदा का रूहुल कुद्स आज रात हमें से बहुतों को वापस आने की तौफीक दे। आइए अपने सर झुकाएं और दुआ मांगना शुरू करें। अपनी हालत पर सोचिए, क्या मैं वो काम तो नहीं कर रहा जो शरन मेरे लिए करना दुरुस्त नहीं, किसी यहूदी के लिए सूअर चराना दुरुस्त नहीं था, फलियां खाना तो दूर की बात। आज रात तेरा बाप तुझे गले लगाने के लिए, चूमने के लिए, बहाल करने के लिए इस जगह पर मौजूद है। रोगने बलसाम का दरिया जारी है। अपने नासूरों पर, जख्मों पर जो गुनाह ने, दुनिया ने, हालात ने आपको दिए हैं, आज रात इसे अप्लाई कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू।